सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश को आजादी मिली। अगर क्या आपको पता है, ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। ये आजादी पाने के लिए न जाने कितने लोगों को अपना परिवार खोना पड़ा, अपना खून बहाना पड़ा। उसके बाद जाकर आज हमें आजादी मिली है। और आज आप कहानी देखने वाले हैं ऐसे ही एक लड़के की, जो अपने घर का इकलौता होकर भी अपने परिवार से पहले अपने देश को चुना। तो आइए देखते हैं। एहसास, एहसास। हाँ जी अब्बू बोलिए, क्या बात है? जी अब्बू, ये क्या है? तुमने आर्मी का फॉर्म भरा? किससे पूछ के? आखिर इस दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था? और अभी मैंने बोला क्या किया बेटा? पूछो, पूछो अपने लड़ने से, इसने क्या किया है? अरे बोतल ये क्या बताएगा तुम्हें? मैं बताता हूँ। इसने आर्मी का फॉर्म भरा है, ये भी हमें कहीं पता। ओ बड़ा क्या बोला? मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। इतने मुद्दतों के बाद जाके हमने तुझको पाया है। और आज तू मेरे किसानों को बेवकूफ करता है। आप कल खुदा ने मुझे सिखाया नहीं करते। अम्मी, आपको इंडियन आर्मी में जॉइन करना मेरे तो से हो सकता है, और इस वतन के सीना ही मेरी शक्ति का इकलौता मैसेज है। अब मैं नहीं होगा। चला जा। लेकिन एक बात याद रख, तू अपनी अम्मी को नाराज करके जा रहा है। अम्मी, इसे नाराज होने की कोई बात नहीं है। अब ये वतन भी मेरा परिवार भी है। मैं जा रहा हूँ, ये वतन मुझे बुला रहा है। खुदा हाफिज। संभालो, संभालो। जैसा कि आपने देखा कैसे अपने घर वालों के मना करने के बाद भी एजाज आईएम में ज्वाइन कर लेता है। और आइए अब हम देखते हैं उसकी एकेडमी में उसका पहला दिन। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की सेंटरमेंट कैडेट्स, धड़कन हैं। मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ट्रेनर साक्षी सिन्हा आपका आईएमए में स्वागत करती हूँ। So before you give your explanation, you better know about it and what it stands for. So training starts now. साथियों So today, I will teach you about Dr. APJ Abdul Kalam. In the year 1918, India was ready to step into the space age, a journey that would eventually include the capability of surveillance satellite. Leading this project was Dr. APJ Abdul Kalam, the director of SLBT project. So, the Rohini sound like is fully prepared. The team is ready to launch. Good. Amen. This is not just a book. It is a message to the world that our nation, India, is self-reliant in space technology. On 18 July 1918, SLBT successfully launched Rohini satellite into the orbit, India's first indigenous launch. This made the formation of PSLV, GSLV, and many future designs to the moon and Mars. And this gave the title Dr. APJ Abdul Kalam, the Missile Man of India. After that, Dr. APJ Abdul Kalam took the
discharge for indigenous missile development program. Agni and military missiles are performing region में. Also, S for Akash, Nag and Vishnu is also on the way. Excellent. This missile will not only protect our nation or safeguard our nation, but will make us depend on no one. Under Kalam's leadership, India developed a lot of missiles like Agni, Prithvi, Akash, Trishul, and Nag missiles, which are used by the Indian Army during the wars and emergency situations. In the year 1998, India was ready to showcase its nuclear power. The world will not know until the next struggle. Are we there? Yes, let us move forward, make our India more strong and secure. In May 1998, with utmost secrecy, the Pokhran 2 nuclear tests were carried out successfully, which made India a nuclear power and a global standing. Then a conference was held between the APJ Abdul Kalam and the students. How can I create things like this for my country? Good question. The answer of the question is dream. Dream, my child, dream. Dream transform into thoughts and thoughts into action. Everybody repeat with me. Great dreams of great dreamers are always fulfilled. Do remember this, child. From space technology to missiles and Indian power, Kalam's work has inspired so many people and it continues to inspire the millions even today. एक तरफ जहां एजाज अपने देश में हो रही वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जान रहा था, वहीं दूसरी ओर वो देश में बढ़ रहे आतंक के लेकर के बहुत ही ज्यादा उदास थे। दोपहर का समय पालगाम घाटी थी। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सब में हंसी और खुशी का माहौल है। तभी अचानक से कहीं दूर से गोलियों की आवाज आ रही है और लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। अपने शौहर की मौत पर जब से ध्यान रखने से करते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक तरफ जहां एजाज इस घटना से बहुत ही नाराज था, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा था कि कैसे देशभक्त होने के लिए आपको सेना में होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके दिल में देश और उसके लोगों के प्रति प्रेमी होना काफी है। खैर ये सुनिए, आपने ये तो सुना होगा कि जय जवान और जय किसान, पर क्या आपको पता है कि जवान के साथ किसान की भी जय क्यों की जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरल और हमारी रक्षा किसान होगा। और आज आप कहानी देखेंगे ऐसे ही एक किसान की और कैसे उसने खुद और अपने परिवार से पहले अपने देश को हराया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश। इतनी धूप में मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ा आराम भी तो कर लो। ये आंदोलन सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं है लक्ष्मी, ये हमारे देश के लिए है। और जब तक हमारा एक देश हरा भरा है, हमारे देश ना एक भी नागरिक धोखा नहीं रहेगा। तभी एक दिन गाँव में खबर आती है कि सड़क पर
जवानों के पास अनाज खत्म हो जाए और रघुनाथ के निर्णय लेता है कि वो अपना सारा अनाज जवानों को दे दे। पर रघुनाथ, ये कतई हमारा बेसाया सहारा है। अगर तुमने हमारा क्या करूं? तुम किस सहारे की बात करी हो लक्ष्मी? अगर हमारे देश के जवान यहाँ करेंगे तो ये सफाया मिल जाएगा। हमारी गौरव है और उनकी जान तो हमारे देश की खाद है लक्ष्मी, खाद है। आप सच में सब कह रहे हैं? हाँ लक्ष्मी, एक बात मैं हमेशा याद रखना, अपने देश में ये दिया गया संविधान हमेशा देख आता है, कभी बरसात नहीं गिरने, कभी आसमात के रूप में। रघुनाथ जैसे किसानों से हम सीख सकते हैं कि कैसे देशभक्ति करने के लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके दिल में अपने देश के लिए समर्पण की भावना और प्यार होना चाहिए। एजाज की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और तभी वो अपने घर पर पहुंच गए। हेलो मम्मी। अरे एहसास बेटा, तुम आज कैसे याद किया? अरे अब्बू, सब खैरियत तो है ना अब्बू? हाँ सब खैरियत। अब्बू, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ पर मैं कह नहीं रहा था। हो बेटा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अब्बू, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे अब्बू हो। बेटा, मैंने कभी तुम्हें दिखाया नहीं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। और एजाज और इसके पिता की बात होते ही एक बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ जाता है। वो कहते हैं विनाशा जैसे मेल में मिलेंगे और हम उनका करेंगे। क्यों काल सामने कवाएगी एक समझदार के बराबर है और हम उनकी बात सच में दिखाने का मौका तभी युद्ध खत्म हो जाता है और एजाज वीरता से लड़ते हुए हमारे इस देश के लिए शहीद हो जाता है। और उसकी मौत से अनजान उसकी अम्मी घर पर उसका इंतजार कर रही हुई है अपनी पल के पश्चात। और तभी ले तेरी मिट्टी तुझे लौटा दी, तेरा कर्ज चुकाया है। कभी दुश्मन के आगे झुका न सर जो, तेरे आगे झुकाया है।
चढ़कर हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सड़क पर जाकर ही हो, बल्कि आप अपने डेली के कामों को भी ईमानदारी से करके, किसी की सहायता कर या कुछ ऐसा काम करके जिससे आपको देश को आपके ऊपर गर्व हो, वैसे भी कर सकते हैं। और इस चलचित्र के माध्यम से हम आपको यही दिखाना चाहते थे कि कैसे देशभक्ति करने के लिए आपको सेना में होना जरूरी नहीं है या फिर आपको हथियार उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपके दिल में अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा काम किया है जिससे मेरे देश को मेरे ऊपर गर्व हो? तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माथे है माटी, माथे है माथा, माथे पे